evening. Sagyana Namaskar. So once again, Maxnan Advisory Private Limited and myself Vaishali Bhide Barve, and I have along with me Good Advocate. evening, all. Advocate Rupali Thakur. Yes. So both of us are going to have a nice chat with you as usual on a Friday evening with regards to sports as a career opportunity, as the various things that we can explore, as the options that are available for our youth of India, for our kids of India, and as the mission of Maxnan Advisory Private Limited goes to develop sportsmanship mindset amongst youth and to create healthy, wealthy globe. So, taking the same mission in mind, we are going to have a chat or a discussion with a new guest speaker with us today. And this gentleman has been a certified strength and conditioning coach, as well as he's been a former strength and conditioning coach for senior national men's cricket team from Nepal. So let me take the privilege and introduce Mr. Ashay Hatkar, who is going to speak with us, who is going to chat with us today about his life journey and about the various opportunities that are available and how he got an opportunity to work as a strength and conditioning coach for a cricket team in Nepal. So welcome Ashay, आपका खूब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में. सो मैक्सनैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सनैन स्पोर्ट्स गुरुकुल इस FB ग्रुप पे अनसीन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का ये सीरीज है और टुडे इज द 36th सेशन. वी हैव बीन कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली टेकिंग दिस सेशंस फॉर द पास्ट so many months, and every Friday we have this session, and today we are privileged to have a chat with you, and we would definitely love to understand your journey overall in the cricket field in Nepal. So that's something which attracted us, that about Nepal, a beautiful place as a scenic beauty, but then how cricket is prevailing in Nepal, we would definitely like to know. But before that, yes, we would want to understand about your journey, as what made you get into the field of strength and conditioning as a profession. So yes, over to you, Ashay. So welcome, Ashay ji. Thank you, ma'am. Thank you, Rupali, ma'am. And it's an equal privilege for me as well to join you guys here. I'm really very excited to I'm really looking forward for this session as well. Yes. So it's been 14 years I'm in this industry. I started my career as a fitness trainer back in 2009 from K11. And since then, I'm in this industry. I've been working with lots of fitness centers as well. Apart from that, I have worked with Indian Olympics. Oh, great. Yes, back in 2015. So I was an assistant strength and conditioning coach for the Indian women boxing and Indian shooting team. क्या बात है? Yes, and so with them, I was working with an entity called OGQ. So it's called Olympic Gold Quest. So I was working for them. And just to be very precise, I was with Mary Kom and Sarita Devi during their Rio Olympics preparation back in 2015. Lovely. Yes. Apart from that, I worked. Yes, Yeah. I'm sorry. No, you can continue. You can. So how was your experience while working in the Indian Olympics? So if you can share that, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए. Each and every day was amazing. I was working with OGK for around 6 months, but each and every day I almost learned everything new every day. Especially with when you work with such kind of legends like Mary Kom and Sarita Devi. Okay, so they just teach you every day. They never give up. All right, they are always ready to fight, and whatever they do, they just give their best. So that is the biggest lesson what I have learned from them. Wow. Yeah. आशय जी, आप ये बहुत डेप्थनेस में काम करते हो, like strengthening, strength and conditioning is like very
डीप लेवल पे आपको काम करना पड़ता है. सो हाउ वाज योर, आई वी वुड लाइक टू नो फर्स्ट, हाउ वाज योर स्कूल जर्नी? आप बचपन से ही ये सब खेल कूद में थे, और आपको कैसे उसकी, यू नो, हाउ वाज योर जर्नी इन स्कूल लाइफ? Right. So I was always an average student in the school as well as in college. I was always inclined towards sports more than studies. That was always there. Yes. What So was I your remember. first, what was your Sorry? first sports? Which पहला Well, was खेल the your कौन सा first first था sport? आपका? sport I played, the first sport I played as a child was cricket only, as much as I remember. But then when I went to the school, there was no cricket, so I was more into sprints, 100-meter sprints, and kabaddi and kho. Okay. So I remember playing kho for school for Okay. 4 years and playing kabaddi for school for a year or so. Super. Apart from that, I used to be an athlete. I was an athlete in my school. And Okay. even in college, the most memorable days for me in my college life was the sports days. Very good. Nice. Yes. Sports So and kabaddi is also going to now be introduced in Kho and kabaddi. Kho and kabaddi. It's right, also going to right, get introduced in Olympics soon. right, exactly. We are already seeing Pro Kabaddi League. They're hyped. They are quite hyped a lot. Yeah. So the exposure for the kabaddi has gone up very much high. Kho is there, they're on the way, but kabaddi has gone quite high. So I'm glad from that point of view as well. तो खो खो का भी एक अलग माहौल है, अलग एक स्ट्रेंथ है, एंड कबड्डी का भी, एंड उसके बाद डायरेक्टली क्रिकेट. सो हाउ वाज द जर्नी, लाइक क्या उसमें माइंडसेट चेंज होते रहते हैं, तो कैसे रहा आपका वो जर्नी? Well, see, cricket was always in my blood, you can say. As a Mumbaikar, as an Indian, cricket is always something like we prefer, you know. So training cricketers gives me a different kind of excitement itself, because I have played that game, so I understand the game as well. I've played that game a lot, so I understand the game as well. So because of that, I understand what factors are required to increase that specific sport fitness. Yeah. So according to that, I started planning and started training my clients who were specifically used to play cricket, and they were athletes as well, who used to play at the national level, international level. So आप पहले से स्कूल से खेल चुके थे, इसलिए आपका वो माइंडसेट भी था, आपको वो पैशन भी थी. तो ये सब मेरी के साथ काम करते वक्त आपको हर आपका एक खो खो था, कबड्डी थे, फिर क्रिकेट है, फिर मेरी के साथ इट इज वेरी डिफरेंट, लाइक यू नो, इंडिविजुअल गेम, बॉक्सिंग. So how was that journey also? Well, that journey was quite amazing. I mean, like, that was a complete new assignment for me. It was the first time I was working with Indian women boxing, and especially with the Mary Kom. So it was a very amazing journey. I mean, like, you get to see how hard they work each and every day, in spite of age. All right. And not only Mary, but along with even their coaches as well. They have to work equally hard. And they used to train almost twice every day. So that is something, again, an intense sport like kabaddi. Okay, even like kho, it is an intense sport. It is a contact sport. All right. So contact sports has always given me a good adrenaline rush, you can say. So I used to enjoy watching their practice, and I always used to look forward to train Mary so that I can make her more stronger and better in her boxing. Nice. तो ये मेरी को ट्रेन करते समय आपको बॉक्सिंग की सब टेक्निकल इश्यूज भी आपको पहले अंडरस्टैंड पड़ते रहेंगे? Yes, definitely. So for that we used to, उसके लिए हम लोग उनके फिजियो से, उनके कोचेस के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे. So we used to understand first that what basically Mary wants, okay, and what's his vision for Mary. So उसके हिसाब से फिर हम लोग उनका प्लान बनाते थे. मतलब some past injuries या फिर कुछ उनके weak points अगर रहेंगे, which was hardly anyway, but उनके कुछ भी points रहेंगे, उनको और strong बनाना है. So all these things used to work a lot. So Vaishali, it is like similar whatever we are dealing with the student, like, you know, we are working with the niche part of the student, like with Asha is also working with the same pattern, I think. Yes. जी, आप 1-to-1 मेरी के साथ बात करते होंगे, उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस के ऊपर बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे. लाइक दैट आल्सो वी आर आल्सो डूइंग सेम थिंग विद द स्टूडेंट. यस वैशाली. Yeah. So
So mindset, when you talk about the mindset, there would be a different kind of a mindset which maybe Mary might be going through, and you would have a different mindset. So how you used to sync those two mindsets together whenever you used to discuss certain things with her, or what exactly were the kind of conversations that you used to have as a sports person, because you also have been a sports person. At the same time, you then developed yourself into strength and conditioning coach, and then how are you syncing those things together? Okay. So before every training session, we used to talk. We used to discuss that. Mary, I used to tell her my plan. Okay, so Mary, we are going to do this. So Mary used to discuss with me that okay, Ashi, we can do this, but we can probably you can do it in another way as well. So we used to always discuss what she wants. She used to understand what I want, and along with that, then we used to come on the same page, and then we used to train, because that is very important. The communication with the athlete is very important. So Yeah. I need to understand what's her attitude towards the game, and what's her takeaway, or what she wants towards the game, and she also needs to understand. So always we used to always talk to each other before every training session. Superb. That's nice. Yeah. So, Pali, Yes. we have few viewers also today who are watching us, and I would like to acknowledge these viewers on FB. So we have Mr. Anand Ranade, and we have Ashwini Dhupe ji, who is also watching us today. So Welcome, Ashwini there are ji. others as well on watching us live. So welcome everybody, and thank you for being with us today here. As well, we would like to request you, if you have any questions, or if you want to know more about this particular field of sports, then definitely you can put up your questions on the chat box in the FB itself, and we can definitely ask these questions to our guest speaker today. Yes, yes. Yes, Rupali, continue. सो आश्चर्य जी, ऐसा कभी होता होगा कि एज अ कोच आपको एक रिजल्ट्स मेरी और एनी स्टूडेंट, एनी प्लेयर्स, उनके पास से अगर वो आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर वो हिसाब से अगर प्लेयर्स उतने रिजल्ट नहीं दे पाते, तो आपकी कंडीशन क्या होती? सी यू नीड टू कीप पेशेंस. मुझे पेशेंस रखने होते हैं और कुछ नहीं. और ऐसा बहुत कम बार, मतलब ऐसा हार्डली कभी हुआ ही होगा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया और उन्हें डिलीवर नहीं किया, बिकॉज दे यूज्ड टू ऑलवेज डिलीवर मोर देन आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट. ऐसा काफी बार हुआ है. सो आई यूज्ड टू कीप पेशेंस. ऐसा मतलब बिकॉज आई नो कि उनमें वो है, बट बस उस दिन वो आया नहीं. दैट्स द ओनली थिंग. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप पेशेंस, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल देम कि मैं उनको बताता था कि मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था जो हमारा नहीं हुआ, एंड दे यूज्ड टू एग्री विद दैट. बट देन अगेन नेक्स्ट डे दे यूज्ड टू कम विद द फुल गन्स ब्लेजिंग. मतलब वो अगर मैंने उनको कुछ पॉइंट बताया हुआ है किसी एथलीट को कि हम लोग को ये वर्क करना था, बट ये आज नहीं हो पाया, बट द नेक्स्ट डे दे कम फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड दे गिव मी 100%. तो ये सब चीजें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर के प्लेयर्स उसके डिपेंड रहते हैं, ये सब कोचिंग के ऊपर. बट व्हाट अबाउट द स्कूल, कॉलेज और जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, उनकी तरफ भी एक ऐसा सोच है ये सब करने की? बिकॉज दिस इज वेरी इन डेप्थ, तो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट ये सब करते हैं क्या? प्लेयर्स करते क्या सर? जी, तो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं, बट उनको क्या होता है कि वो लोग काफी ऑक्यूपाइड होते हैं उनके स्टडीज में या फिर उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, तो वो उतना 100% नहीं दे पाते. बट देन आई मेक श्योर कि वो अपना 100% दे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर डाइट, या फिर उनका वाटर इनटेक, या फिर उनकी रेस्ट. तो ये प्रॉब्लम कभी कभी फेस होता है. तो आपको लगता है कि पेरेंट्स इसके लिए बहुत सपोर्टिव रहते हैं? जैसे कि क्या होता है, स्कूल में एक योगा टीचर रहता है, एक फिजियो रहता है, एक डाइटिशियन रहता है, ऐसे सब होता है. बट ये आपका जो काम है बहुत डिटेल में है, तो पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करते हैं इस चीज को? पेरेंट्स डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस और फिटनेस ट्रेनर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है. इफ आई टेक माई सेल्फ 10 years बैक और अभी, काफी वास्ट डिफरेंस हुआ है. They actually understand the importance of fitness training. They actually understand the importance of strength and conditioning coaches as well. क्योंकि उनका रोल completely different होता है, फिजियो का रोल completely different होता है, और दोनों अगर सिंक होते हैं तो डेफिनेटली जिनको भी, चाहे वो एथलीट हो या फिर कोई स्कूल लेवल किड हो,
उनको हम लोग 100% उनका रिजल्ट अचीव करने में पूरी तरह हेल्प करते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप जो कोचिंग देते हो इन डेप्थ, तो अगर ये सब प्लेयर्स करते हैं तो जो डिजायर रिजल्ट अचीव करना है हाईएस्ट लेवल पे, वो सब कर सकते हैं, और अभी से अगर उसकी शुरुआत कर दी तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इफ यू बिल्ड योर, अगर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट है वो इन वॉट एवर स्पोर्ट यू प्ले। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, यू बिकम मोर इंजुरी प्रोन एज वेल। आपको इंजुरी प्रिवेंशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको कोई स्पोर्ट में इंजुरी होती है तो आप वापस, डिपेंड्स अपॉन द इंजुरी, अगर वो सीरियस इंजुरी होती है तो आप काफी पीछे चले जाते हो। अगर माइनर इंजुरी होती है तो यू हैव एन नैरो एस्केप, बट अगर मेजर इंजुरी होती है तो आप काफी पीछे चले जाते हो। तो अगर आपका फाउंडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो इंजुरी के चांसेस इन फ्यूचर भी उतने ही कम हो जाते हैं। और आप जो भी मतलब कोई स्कूल लेवल का बच्चा हो या फिर कोई एथलीट हो तो वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाता है इन फ्यूचर। सो आशय जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक सवाल आया हुआ है हमारे एफबी पे, एक दर्शक ने पूछा है। सो लेट मी फर्स्ट एक्नॉलेज दी मिस्टर दीपक परांजपे. He is asking कि he is not a sports person by profession, but not being a sports person also, how can we keep ourselves fit? So certainly not at the level of sports person, लेकिन खुद के लिए हम कैसे फिट रख सकते हैं, so that you know look and feel good factor खुद के लिए कैसे आए? तो right. Yes. So I think Paranjpe ji is asking about the general fitness. Yes. Right. Maybe. So yes, maybe, yeah. So देखिए, अगर आपको फिट रखना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका डाइट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इन दो चीजों पे पूरी तरह ध्यान देना है। फिर फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो वो आपको कंसिस्टेंट रखनी है और उसके हिसाब से आपको आपका डाइट प्लेस करना है। डाइट मतलब क्या? यूजुअली डाइट का मतलब लोगों के लिए ऐसा होता है कि अगर मैं घर का खाना खा रहा हूँ, हेल्दी खाना खा रहा हूँ तो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, डाइट वैसे नहीं होता है। डाइट का मतलब क्या होता है कि आपको हेल्दी खाना खाना होता है, बट हेल्दी खाना कितने क्वांटिटी में खाना होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम पे खाना होता है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Absolutely. तो Yes. राइट। So Ashay ji, I think I think the immunity factor has gained more importance, maybe fortunately or unfortunately, because of the whatever scenarios have happened in the last 2 years or couple of years. Right. तो उसके वजह से काफी अवेयरनेस इस चीज के बारे में होने लगा है. And I think Mr. Deepak Paranjpe wanted to know that only, especially after lockdown, how are we supposed to, keep ourselves fit? And also, I would also like to acknowledge Mr. Shekhar Mahadik. उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि how to build stamina after the age of 65 years. तो ये दोनों भी सवालों का जवाब आप अगर चाहो तो एक साथ दे सकते हैं, प्लीज। जी, मैं पहले सवाल से पहले कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको डाइट मतलब क्या होता है कि नॉट ईटिंग ओनली हेल्दी फूड, घर का खाना, बट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी एज वेल। तो उसमें भी आपको आपका जो भी गोल होता है, फैट लॉस या मसल गेन, उसके हिसाब से आपका प्रोटीन, कार्ब और फैट इंटेक वेरी करना होता है, जो डेफिनेटली डाइटिशियन इज द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। ओके, उसके साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, चाहे वो कोई भी हो, मतलब वो प्रॉब्ली जॉगिंग हो या फिर जिम जाना हो या फिर योगा करना हो, एनीथिंग अपार्ट। तो उसके साथ आपको वाटर इनटेक और आपका रेस्ट, ये दोनों चीजें भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप जिम में, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, बट आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो उसका फायदा नहीं होगा आपको। और अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हो और आप ठीक से वाटर इनटेक आपका नहीं है तो भी उसका फायदा नहीं होगा। तो ये चारों चीजें आपको कंसिस्टेंटली साइमल्टेनियसली फॉलो करनी है। वेरी ट्रू। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आप आपकी फिटनेस लेवल इंप्रूव कर सकते हो, फिर वो कोई भी एज हो। डेफिनेटली अगर आपकी एज अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यंगर पर्सन के हिसाब से आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप अचीव करोगे उतना गारंटी है। फिर आता हूं मैं मिस्टर शेखर महाडिक के सवालों पे। तो आफ्टर द एज ऑफ 55
और 65, अगर आपको स्टैमिना बिल्डअप करना है तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग अ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे मेजरली तो वॉकिंग ही होता है। ओके, स्पेशली आफ्टर 55-65 अगर आप प्रॉपरली एवरीडे वॉक करते हो, अगर आप न्यू कमर हो, अगर आप बिगिनर हो, तो स्टार्ट विद 10 to 15 मिनट्स, फिर धीरे धीरे एक एक हफ्ते के बाद 5 या 10 मिनट बढ़ाते जाइए। ऑटोमेटिकली आपका स्टैमिना इंप्रूव होना ही है, बट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। बट आपको खुद से मेंटली पुश करना भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज एट दिस एज इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट because of the other health issues as well, if they have any, definitely. But usually 55-65 के age में we see common issues like knee pain या फिर back pain, उसकी वजह से उनका walking या फिर जो भी running वो करते हैं वो थोड़ा halt हो जाता है या फिर थोड़ा break हो जाता है rhythm। okay, तो उसके लिए भी आपको अगर strengthening exercise करने हैं तो that will also benefit that particular person in their walking and running as well। Super. So I would also like to add up here to our viewers that thank you for being so proactive and asking these questions. Do come up with more and more questions, and we would also like to have your feedback about how are you liking our sessions. आप comments कर सकते हैं comment box में, और आप बता सकते हैं हमें कि ये session आपको कैसे लग रहा है, how is it, and आप हमारे जो पहले के 35 sessions भी है वो भी सारे आप हमारे Facebook पे available है, so you can watch onto our Facebook group Max Nyan Sports Gurukul and view all those sessions where you will get different kind of information on different sports as well. So definitely you can add up to the comments and do reach out to us if you need more and more information. So yes, Rupali, you can continue. Yeah. So अभी आशय जी, आपका जो थर्ड गेम है क्रिकेट है और इंडिया में इज अ रिलीजन, तो जो आप जैसे बता रहे थे कि फूड हैबिट्स है, वाटर इंटेक है और न्यूट्रिशन वैल्यूज जैसे सभी, अभी आपने जो खो खो और कबड्डी के लिए उसमें 7 से 9 प्लेयर रहते, और क्रिकेट में ऐसे टोटल 11 प्लेयर्स एंड 15 का टीम। सो यू नो तभी, और इंडिया में कैसे है कि हर एक स्टेट का कल्चर अलग है, भाषा अलग है। सो आप उस चीज को कैसे देखते हो? क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश में जाओगे तो फूड एक कल्चर अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, और इंडियन ये जो टीम है उसमें अलग अलग ये स्टेट के लोग रहते हैं। तो आप उसके साथ कैसे डील करते हो? क्योंकि मुझे अगर हैबिट है 10 बजे खाने का तो किसी को 7 बजे है, तो ये इसको कैसे टैकल करते हो आप? ओके, तो अगर उनका स्केड्यूल वैसा है तो उनके हिसाब से फिर हम लोग को डाइट प्लान करना पड़ता है, स्पेशली डाइटिशियंस को। और फिर अगर हो सके तो उनका फूड हैबिट या फिर ईटिंग हैबिट थोड़ा चेंज करना पड़ता है, सो दैट अगेन बिकम अ म्यूचुअल डिस्कशन एंड म्यूचुअल डिसीजन। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लेयर टू प्लेयर। अगर कोई प्लेयर अगर चेंज हो सकता है तो डेफिनेटली वो होता है। अगर कोई प्लेयर इट बिकम्स, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर देम देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन। सो उसके हिसाब से हम लोग को ऑल्टर करके फिर डिसीजन लेना पड़ता है, स्पेशली फॉर द डाइटिशियंस। एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपको एक डिसीजन लेके वो सब चीजें करनी पड़ती है। अभी आप एक स्टेट छोड़ के, आप एक कंट्री छोड़ के एक अलग कंट्री में गए जो है नेपाल। सो नेपाल में भी एक अलग कल्चर है, अलग माहौल है, अलग माइंडसेट है, तो कैसे आप उनके साथ डील करते थे? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नेपाल के लोग ऑलमोस्ट इंडिया जैसे ही है। मतलब उनके फेस्टिवल्स या फिर उनके जो भी मतलब परंपरा वो सब सारे इंडियन जैसे ही है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आई यूज्ड टू फील लाइक बैक होम इटसेल्फ, सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और वो काफी मतलब नेपाल के जो भी क्रिकेटर्स थे, जो भी लोग थे, वो एक चीज मैंने काफी नोटिस की कि वो काफी हम्बल है। दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, वॉट एवर बैकग्राउंड यू मे कम फ्रॉम, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा काम बहुत आसान होता है। ओके, तो जो जेलअप होना होता है या फिर जो रैपो बिल्डअप होता है एक प्लेयर का और एक कोच का, फिर एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का, वो काफी आसानी से बन जाता है। तो अगर वो एक रैपो जल्दी बिल्डअप हो जाता है, वो एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा जल्दी बिल्डअप हो जाता है, तो कोच के लिए भी अच्छा होता है, प्लेयर के लिए भी अच्छा होता है, और वो सिंक में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। तो आप कौन सी भाषा में उनके साथ बात करते हो? हिंदी, इंग्लिश, जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बॉन्ड बनाने में अपनी भाषा की बहुत
उसमें important? नेपाली भी जी। सीख ली होगी थोड़ी थोड़ी। एक दो लाइन सीखी थी बट मेजरली मैं हिंदी में ही बात करता था उनसे, बिकॉज हिंदी इज अ कॉमन लैंग्वेज आउट देयर, तो Okay. मेजरली मैं हिंदी में ही बात करता था उनसे। जी। अच्छा, यहाँ पे रूपाली, वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि this lady is 25 years old and she is diabetic patient. ओके So what type of exercise should she do? ओके, एक्सरसाइज के बारे में कोई इशू नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। द ओनली थिंग व्हाट यू लुक आफ्टर इज योर डाइट बेसिकली। अगर आप डायबिटिक हो तो दैट लेडी नीड्स टू कंसल्ट रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो अगर आपको डाइट, अगर आप अप टू द मार्क के, अगर वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, then definitely there should not be any problem to control, bring her diabetes back in control। और एक्सरसाइज वो कोई भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। Okay. जी। So I think it is also important to understand and take proper guidance from the doctors also. So need to understand Exactly. whether what kind of a diabetes it is, whether it is a hereditary one or which is prone through the diet. So I think that is also important to be understood. Exactly. तो अभी क्रिकेट में कैसे रहता है कि बैटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, बॉलिंग है, फील्डिंग है, तो आप उनकी तरफ कैसे देखते हो? लाइक ओपनर है तो अलग स्ट्रेंथन एक्सरसाइज होते हैं, बॉलर है तो उसके लिए, फील्डर कौन सी जगह पे पोजीशन है उनका, लाइक कि कवर्स में करते हैं, मिड ऑन पे करते हैं, लॉन्ग ऑन पे करते हैं, वो हिसाब से आप उनको आप एक्सरसाइज वगैरह देते हो? जी, यूजुअली मतलब मेजरली क्या होता है कि चाहे वो बैट्समैन या बॉलर हो, सबसे पहले वो फील्डर होता है। अगर कोई भी टीम अगर वो फील्डिंग कर रही है तो चाहे वो बैट्समैन या बॉलर हो, वो फील्डिंग तो करेगा ही। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से मुझे उनको ट्रेन करना होता है। रही बात उनके पोजीशंस के हिसाब से, अगर उनको ट्रेन करना है तो यस, स्पेशली जो स्लिप प्लेयर्स होते हैं या फिर स्लिम मिड ऑन स्लिम मिड ऑफ होते हैं, उनको थोड़ा अलग से ट्रेन करना होता है। बट देयर इज नो मेजर डिफरेंस इन द ट्रेनिंग, बट यस, देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू लुक आफ्टर एंड ट्रेन देम अकॉर्डिंगली। सो जैसे कि अब पहले से हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि खो खो, कबड्डी, मेरी कोम के साथ बॉक्सिंग, फिर क्रिकेट, और फिर ऐसे कौन से ऐसे गेम्स हैं उसमें आपको अलग माइंडसेट से उनके साथ बात करना पड़ता है? कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपके साथ कभी हुई है क्या? चैलेंजिंग सिचुएशन कभी आती है जब वो प्लेयर अगर इंजर्ड हो तब, या फिर अगर वो इंजुरी से रिकवर होके आया हो तब, क्योंकि तभी काफी वो वोलाटाइल होता है, वो मेंटली उतना स्ट्रांग भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका होता है या फिर इंजुरी से जस्ट निकल कर आ चुका होता है। तो उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस लेवल कोई किसी भी प्लेयर का यूजुअली थोड़ा डाउन होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग को उनको फिजिकली नहीं, ताकि बट मेंटली भी उनको ट्रेन करना उतना ही जरूरी होता है। उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाना कि वो फिटनेस लेवल उनकी पहले अचीव हो चुकी थी, तो अब वापस अचीव कर भी सकते हैं। तो उसके हिसाब से कभी कभी चैलेंजेस आते हैं। आपके कोई ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए नेपाल टीम के साथ, और जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसे कुछ। जी, तो जैसे मैंने कहा कि वो काफी डाउन टू अर्थ है, और जब मैं नेपाल टीम के साथ था तो उनके कोच थे मिस्टर डेव वॉटमोर, जो काफी वर्ल्ड फेमस कोच है, जो 96 के साल में श्रीलंका जब वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम के वो कोच रह चुके थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफी सारे एशियन कंट्रीज को भी ट्रेन किया हुआ है, तो ही इज क्वाइट वेल नोन। तो मतलब मैं उनके साथ भी जब मैं काम कर रहा था तो ही यूज्ड टू मेक मी फील सो कंफर्टेबल कि मुझे कभी भी ऐसे इंटिमिडेशन नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ काम कर रहा हूँ, इतने वेल नोन पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि वो एक रैपो काफी अच्छा बिल्डअप हो जाता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल फील कराते थे, प्लेयर्स और कोचेस सारे। ओके, तो मेरा प्लेयर्स को भी पता था कि मैं नेपाल में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे भी थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, बिकॉज वहाँ पे वेदर कंडीशंस काफी, मतलब टेम्परेचर काफी लो होता था। सुबह जब मैं ट्रेनिंग के लिए निकलता था तो 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होता था। काफी बार ऐसे भी हो चुका है कि ग्राउंड पे बर्फ जमा है और हम लोग बर्फ पिघलने की वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो मैं इन वेदर कंडीशंस के लिए जरा भी यूज टू नहीं था, बिकॉज मुंबई इज ऑलवेज हॉटर। मुंबई ने कभी 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर शायद देखा नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं देखा है मुंबई में आज तक कभी। तो उसके हिसाब से फिर
चैलेंजेस होते थे, बट दे यूज्ड टू मेक मी फील सो कंफर्टेबल कि मुझे मेरा काम करने के लिए काफी आसानी होती थी। तो जैसे कि प्लेयर्स को फिट रखना है, आपको भी पहले फिट रखना है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जो भी सिचुएशन है उसको आपको अडाप्ट करके उसके ऊपर काम भी करना है। सो बेसिकली ये सब चीजें आपको खुद को भी करनी पड़ती है। आपकी टीम कैसे काम करती है, मीन्स कौन आपकी टीम में रहते हैं? जैसे कि 11 प्लेयर्स तो वो खेलने जाते हैं, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट बैकएंड में सबसे बड़ी चीज है जो आप टीम में काम करते हैं, तो कौन कौन से पार्टनर्स रहते हैं आपके साथ? जी, यूजुअली कोई भी क्रिकेट टीम या कोई भी स्पोर्ट टीम हो, उसमें सपोर्ट स्टाफ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट तो इम्पोर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, एक स्पोर्ट्स मैस्योर रहता है। ओके, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो उसमें वीडियो एनालिस्ट भी होते हैं, ऑलराइट। बट अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्पोर्ट्स मैस्योर, डायटिशियन होते हैं, वीडियो एनालिस्ट होते हैं, तो ये सारे लोग होते हैं बैकएंड में जो एज ए सपोर्ट स्टाफ काम करते हैं। तो ये यस, तो यूजुअली फिजियोज जो होते हैं वो रिकवरी प्रोसेस के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है। प्लेयर्स का इंजरी प्रिवेंशन, रिकवरी प्रोसेस, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो उनको मैच रेडी करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का काफी हेल्प होता है। तो ये सारे लोग होते हैं बैकएंड में बेसिकली। तो ये यूजुअली इस टीम का मैं हिस्सा होता हूँ। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे रहती है? अभी एक वनडे मैच है, 2020 है, टेस्ट है, तो कब से प्रिपरेशन रहती है? आपका माइंडसेट तभी कैसे रहता है? आपका प्लानिंग कैसे रहता है तभी? जी, तो अगर T20 गेम है तो मतलब वो थोड़ा कम इंटेंस गेम होता है बेसिकली। मतलब अगर टेस्ट मैच की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इट्स अ फास्ट पेस गेम, बट थोड़ा कम इंटेंस होता है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग को उनको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर ऑन सीजन है या प्री सीजन है तो हम लोग को उनको मेंटेनेंस के ऊपर ही काम करना होता है यूजुअली, और उनके रिकवरी के ऊपर फोकस करना होता है, बिकॉज वो लोग स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं उस टाइम पे। अगर गेम नजदीक हो तो उनको स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है, और मेंटेनेंस के हिसाब से फिर हम लोग उनके एक्सरसाइज प्लान आउट करके फिर उनसे एग्जीक्यूट कराते हैं। फिजियोस का भी उनका रिकवरी प्रोसेस के ऊपर ही पूरा फोकस होता है, बिकॉज उनको गेम खेलना होता है, उनको नेक्स्ट डे प्रैक्टिस भी करनी होती है। अगर गेम नजदीक आ रहा हो तो एवरीडे प्रैक्टिस होती है, तो उनको रिकवरी प्रोसेस के ऊपर फिजियोस और जो स्पोर्ट्स मैसेज होते हैं उनका फोकस ज्यादा होता है। नाइस। सो मीन्स ऐसे चीजों को मेंटेन किया जैसे वैसे हमको भी मेंटेन किया जाता है, और ऑफ सीजन में आप पीपल आर वर्किंग ऑन दैट मेंटेनेंस, जी, दैट पर्टिकुलर फिटनेस के ऊपर आप काम करते हैं। So Rupali, whatever we have been discussing, we've been talking about different occupations within the same sport. So likewise, as Mr. Ashay said, that 11 players are, we can see the 11 players, but there are a lot of other occupations. So likewise, when we talk about, or when we go for selections in cricket also, so there are 50 out of the 50 students, only 11 students actually play, or only 11 players actually play on the ground, while the 39 players, they too have some or the other uniqueness in them. And this is what is more important for them to understand, that when we identify the exact core competencies of all these 39 people, we come to know that one could be best at as a video analyst, or one could get into as a instructor, or one could get into as a sports photographer, or a physiologist, or a psychologist, sports psychologist. So there are a lot of occupations that are available, and this is what Maxnan is into. So Ashay, I would like to share this with you, that Maxnan is doing these things where the 39 की 11 प्लेयर ऑन द ग्राउंड स्टेज पे है, लेकिन वो 39 लोगों का करना क्या है? उन लोगों ने अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए तो उनका फ्यूचर कहाँ पे है? तो ये फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन मैक्सनैन करके देता है कि जिनको ये पता चले कि हम कौन सी चीज में बेस्ट है, और फिर वैसे करियर ऑप्शंस उनके लिए क्या है, या तो फिर उनको इनकम जनरेटिंग सोर्सेज, ऑल्टरनेटिव प्लान्स कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, इसके लिए हम पूरा मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे इसी बात को आगे लेके जाके आपसे ये पूछना है कि आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का जो प्रोफेशनल डिग्री आपने जो हासिल की है, या जो डिप्लोमा आपने, सर्टिफिकेशन कोर्स जो आपने हासिल किया है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी हमें दीजिए, हमें और हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, तो मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन
ACSM, वहां से मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया था स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में। और उसके बावजूद मैं अभी सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ। तो ये मैंने सर्टिफिकेशन काफी पहले किया था, और उसके बाद फिर मैं इंडियन ओलंपिक्स में भी सिलेक्ट हुआ था उसके बेसिस पे। जो OGQ मैंने पहले मेंशन किया था, वो OGQ में भी उसके बेसिस पे सिलेक्ट हुआ था। सो हम यही बात आगे लेके जाते हैं कि हम स्टूडेंट को यही बताते हैं कि भाई आपके पास अगर कुछ है, अगर पैशन है इस खेल के लिए और स्पोर्ट्स में ही कुछ करियर बनाना, देयर आर सर्टेन अदर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। जैसे आपने ये डिग्री हासिल की है, आप पहले खेलते भी थे, और अगर आगे कुछ जाना है, अगर योगा भी करते हो तो आगे जाकर अगर कुछ करना है तो ये सब चीजें आपके लिए है, पर सिर्फ आपको उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। जैसे हम हमेशा यही बताना चाहते हैं कि आगे जाके आपके लिए डिग्रीज है, डिप्लोमा है, और आपकी पैशन इनटू प्रोफेशन अगर बदलनी है तो किस चीज में हम गाइडेंस करते हैं, इसी के बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप ये जो चीजें हैं आपने आगे जाके आपने खुद की, और आप अभी ओलंपिक्स के जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके साथ काम करते हो। और हम हमेशा यही बताना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में हम बीइंग अ इंडियन, we are only 1%, we are just focusing on 1%. We people are like focusing on sports activity, otherwise people are not there, like they don't want to study, they don't just want to focus on study rather than in focus on sports itself. तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, उसमें आपको कैसे लगता है कि आगे जाके इसमें करियर हो सकता है? आप बच्चों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, टीचर्स को क्या बताना चाहते हो? जी देखिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड ऐसी है, इट्स जस्ट लाइक अनदर फील्ड। ओके, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हो या और मतलब उसके बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड का भी सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। अगर आप जितना सर्टिफिकेशन करोगे और उसके साथ अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना है और आपका सर्टिफिकेशन भी है अच्छा खासा, देन डेफिनेटली द डोर्स आर वाइड ओपन। देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अभी स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। आफ्टर 2020 ओलंपिक स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला है। जैसे कि खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ है, आप कुछ सालों से देख रहे, प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हो चुकी है, IPL इतने सालों से है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने थॉमस ओवर कप जीता है बैडमिंटन में। निखत जरीन ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। देन बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी he keep winning world championship every now and then. शूटिंग में अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर शूटिंग वर्ल्ड कप होते इंडियन टीम पोडियम पे होती ही होती है, चाहे वो कोई भी मेडल हो, इंडियन टीम पोडियम पे होती ही होती है। तो स्पोर्ट्स को डेफिनेटली इंडिया में काफी एक्सपोजर मिल रहा है, और उसके लिए जो हमारा स्पोर्ट्स के लिए जो भी सपोर्ट स्टाफ लगता है उसके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। तो डेफिनेटली अगर आप जितने सर्टिफिकेशंस करोगे, स्पेशलाइजेशन फिटनेस में और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में करोगे, और अगर आपको उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अगर आप लेते रहे, तो डेफिनेटली आपको काफी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर मिल सकती है। ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो, तो किस चीज में मीन्स वो खेलने चाहिए, उन्होंने किसी एक स्पोर्ट्स में फोकस करना चाहिए, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब खेलना, मतलब I'm not talking about playing that particular sport, but training that particular athlete, या फिर कोई भी एथलीट हो या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन भी हो, अगर आप एथलीट को ट्रेन करते हो इट्स वेल एंड गुड। तो आपको देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, बट उनकी ट्रेनिंग मतलब उनका एनर्जी सिस्टम अगर आप समझ जाओ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए वो जरूरी होता है। एनर्जी सिस्टम अगर आप समझ जाओ तो कोई भी एथलीट को ट्रेन करना आसान होता है। तो अगर वही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो वो चीजें कब आपको पता होती है, वो चीजें कब आपको समझ में आती है, जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको आता है। उसके साथ साथ अगर आप सर्टिफिकेशन स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी आता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के आप आपका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट कर सकते हो, स्पेशली इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड। सो बेसिकली बहुत चीजें आपने बहुत डेप्थ में बताई, जैसे कि आपका प्रोफेशन भी है क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग। तो डेप्थनेस में जाने के लिए आप स्टूडेंट्स को कभी से इसकी शुरुआत करनी होगी? जैसे कि उनको पता चलता है कि अभी जैसे हम बात करते हैं कि इंजरी होने के बाद दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद देयर ओन
एक्चुअल गेम ऑल्सो, तो उनको कभी ऐसे शुरुआत करनी होनी चाहिए कि अभी मुझे ये सब करना है और मैं आगे जाके यही करूंगा, कभी उनको मालूम होता है? और आपका क्या गाइडेंस है उस पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि हर एक बच्चे को मतलब हर एक बच्चे को कोई भी स्पोर्ट टुवर्ड्स मतलब स्पोर्ट लेना जरूरी है। इट्स नॉट लिखे और कि मतलब मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आजकल काफी सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स एनीवे कंपलसरी किया ही है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो अनटिल एंड अनलेस कोई भी बच्चा अगर किसी स्पोर्ट के टुवर्ड्स इंक्लाइन है, इंटरेस्टेड है, जो हम लोग को बहुत पहले ही पता चल जाता है जब वो स्पोर्ट खेलना चालू करता है तब, ओके, तो नो मैटर वॉट एवर एज इज, that kid can start playing that sport, और उसके बाद जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है, we can start working on his strengthening and conditioning, and उनको उनका फिर फिनिशिंग टच एंड वो सब कुछ भी देना उतना ही जरूरी होता है। It is important for parents to understand कि अगर जी child के mental health के लिए playgrounds, physical playgrounds are more important than the virtual playgrounds जी today. Absolutely. That's right. Yeah. That's right. तो यहाँ पे मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत सारा काम होता है आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में। जी जी वेरी गुड। सो आई थिंक वैशाली वी आर आल्सो वर्किंग ऑन सेम थिंग, माइंडसेट के ऊपर हम जो काम करते हैं, और पेरेंट्स को हमेशा यही बताना चाहते हैं कि आपकी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू शुड हैव दिस ऑल सपोर्टिंग हैंड्स जैसे आप करते हो। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रूपाली, आई थिंक इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि स्पोर्ट्स ना कि सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. So not necessarily that everybody should be playing competitive game, but definitely for your own health, for your own fitness, we should play some or the other sport. We should be inclined towards playing that rather than just being on the virtual networks and virtual playgrounds. So what we Asha ji, we always promote this, that being sports personalities ourselves, being cricketers ourselves, we always promote that ये बहुत जरूरी है, और especially to the younger generation of India today, extremely important that they play and come on the ground and play. जी जी absolutely absolutely. जैसे अभी किसी ने पूछा था 65 ईयर ओल्ड कि कैसे उनको अपनी सेहत बना के रखनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इफ दे आर डूइंग लिटिल बिट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इज ऑल्सो गुड एक्टिविटी, जो अगर जैसे जो एज में उनको जो अच्छा है वो अगर कर सकते हैं वो डेफिनेटली फिट रह सकते हैं। और फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2 साल जो हमारे गए उसमें फिजिकल माइंडसेट से जो स्ट्रांग थे, फिजिकली फिट थे, वही यहाँ पे सरवाइव हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और आप बहुत डिटेलिंग में जो काम करते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। सो थैंक यू. And Rupali, I think that 10th standard and 12th standard examinations are over. Yes. And I think kids have a good time in hand. And it is important that the students should really understand the fact that just what we do is we generally identify which sport is best fitted for you. So rather than jumping from one sport to another, might as well identify which sport you're best at, whether you're good at a team game or you're good at an individual game. So we can help you understand, identify that, and since we are associated with different kinds of coaches, international, national level sports personalities who are a very good guidance for these students and parents, please do take the advantage of this and take the proper guidance for which kind of a sport is best fit for your child. And of course, uske baad, what are the various opportunities that are available, whether in the field of sports or in the field of other academic areas. So we will be able to give you the right appropriate guidance. So before spending too much of your money, hard-earned money, might as well take a proper guidance and go ahead. Do not waste time, effort, energy in just trial and errors in your life.
to take proper appropriate guidance. That would be our recommendation strongly to all our parents and the students who have completed their 10th and 12th recently. Yeah. So, Yes. Ashay ji, what is the one guidance or last statement from your end that you would like to share as a guest speaker with Maxnan, that क्या करना चाहिए parents ने और बच्चों ने, so how they should go forward and progress. So I would first like to understand definitely that what is your vision. Now you are already a strength and conditioning coach and you have achieved so much in life. So what next? So we always talk about why. We work on the root causes of identifying the child's potential and then what next. So वो आपके लिए what next आपने क्या define किया है? Right. So basically जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप जितना आपका सर्टिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन करोगे उतना आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती जाती है इन फ्यूचर. तो मेरा भी प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली वही है, जितना हो सके उतना मुझे स्टडीज करना है इस फील्ड में, बिकॉज आई लव दिस फील्ड एंड उसके लिए मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है. सो डेफिनेटली मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है, या फिर मेरा मतलब मैं अपने लिए वही देख रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मुझे इस फील्ड में स्टडी करना है और इस फील्ड में आगे जाना है. और द बेस्ट टीम विच आई गेट इन फ्यूचर एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच वुड बी प्रॉब्ली एनी टीम, एनी स्पोर्ट अपकमिंग टीम. आई वुड बी हैप्पी टू ट्रेन दैट. तो आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है? वैसे हम पूछते हैं, वैसे ड्रीम टीम कौन सी है आपको उसमें काम करना अच्छा लगे? देखिए वैसे तो I would like to train Indian hockey team if you ask me. Oh wow. Yes, क्योंकि काफी मतलब मैंने काफी देखा कि अभी वो रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो डेफिनेटली दे हैव गुड पोटेंशियल. तो I really want to. Hello. Yeah. Go on, Ashay. Yeah. Go on. Yeah. We can hear you, Ashay. Okay. So I really want to see them winning a World Cup or winning a gold medal in upcoming Olympics or in the World Cup competition. So definitely that is my dream team, you can say. Super. Yes, so all the best for this dream. और हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आप वो टीम के साथ हो और गोल्ड मेडल जीतो. यही शुभकामनाएं है मैक्समैन की आपके साथ हमेशा रहेगी. Super. Ashay, can you hear us? Yes. Okay, great. So Ashay, we're really grateful to you. Thank you very much. And I would also like to, on behalf of Maxnan, would like to acknowledge all our viewers today who are on the FB Live watching us and have put on their questions, their queries. And definitely we would like to acknowledge your time for viewing and attending the session. Also, we would like to request you to share your comments and your feedback about these sessions. We would be definitely coming up with new sessions on different aspects, different topics within the field of sports, because Maxnan is primarily working on the sports area and sports field. So soon we would be coming on different topics like the how to avoid sports injury, what are the different topics within the sports field, what are the different games, furthermore new games that are coming up in sports which we might not be aware of. So these are topics that are in the pipeline. So do keep watching us, do keep sharing your feedbacks, and do share if you have anything in mind about, if you want to know more in the field of sports or about a different sport, then do share with us. We will definitely try and accommodate that. Yes, Ashay, we are really grateful to you for being with us on this live show today. And thank you very much for your time and wonderful sharing from your life and your experiences. So it's been a great experience speaking to you. We really enjoyed, and I'm sure our viewers have also enjoyed the same. So thank you very much, Ashay. Most welcome. It was really an honor to
to come on your Maximian platform and discuss all these things which need to be addressed at a very high level. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.